بڑے اہم معاملات ہیں سیاست میں، کوئی بھی چپ رہنے کو تیار نہیں، مگر کیا پورا سچ بھی عوام کے سامنے آ رہا ہے؟ انہی سوالوں پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عارف حمید بھٹی صاحب۔ یہ جتنی پولیٹیکلی ایک ہمیں کشیدگی، بے چینی، اتار چڑھاؤ نظر آ رہے ہیں، یہ لے جا کس طرف رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ چودھری جعفر اقبال، پاکستان تحریک انصاف سے جمشید اقبال چیمہ صاحب ہوں گے۔ بھٹی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی۔ عید کے باوجود ایک تلخی ہے ہر طرف، عجیب قسم کا ماحول سیاسی بن گیا ہے، ہر کوئی اپنے حصے کی بات کہنے کو تیار ہے۔ سچ ہے یا نہیں ہے، کیسے پرکھا جائے، تلاش کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عائشہ، بدقسمتی ہے ہر طاقتور کا سچ اور انصاف اس کی اپنی خواہش کے تابع ہے، حقائق پہ نہیں کبھی سوچتا کوئی۔ مجھے ایک لیڈر بتا دیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، جماعت اسلامی کا، مولانا کو، جو کہے کہ میرا لیڈر غلط۔ ایک کوئی تو غلط ہوگا نا۔ ایک ایشو پہ دو پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں۔ میں پہلے آ جاتا ہوں خان صاحب کی، اس محترم وزیر اعظم سابق نیوٹرل بھائی، پھر میں تو جانور ہوں، تو میں عمران خان پہ کیا کمنٹ کروں؟ میری نظر میں مجھے تو ثابت پڑھائی تھی کہ صافی غیر جانبدار ہو رہا ہے۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں نون لیگ کرپٹ ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے عمران خان کرپٹ ہے، تو میں کس طرف جاؤں؟ جب تک آپ سچ پرکھیں گے نہیں، متعلقہ ادارے اس بندے کو گناہ گار نہیں کہیں گے، میں کسی ایک لیڈر کے کہنے پہ دوسرے کو ڈاکو، چور، غدار کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ صحافی کو کس نے رائٹ دی ہے؟ سر ایک قطع کلامی کی معذرت، گزشتہ روز جنہوں نے بات کی پوڈ کاسٹ، اس میں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے صحافیوں کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ کا فرض ہے امر بالمعروف اور درست طرف کھڑے ہوں۔ اب میں خان صاحب کو بہت زیادہ جانتا ہوں، وہ آپ انہیں بہت زیادہ جانتے، وہ بھی بہت زیادہ جانتے نہیں، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ فرا کی کہتے ہیں کہ وہ اس نے کرپشن نہیں کی۔ اگر یہ عدالت بیٹھے فرا کی کرپشن اربوں کی ثابت نہ ہو تو جمشید اقبال چیمے کو میں جج بنا دوں گا اپنی سزا کے لیے۔ اب جج مرضی کا چاہیے ہوگا تو پھر ٹھیک، میں تو ان کی مرضی، اس کی پارٹی کا بنا رہا ہوں۔ وہ فرا کی تو بوٹا پتہ جانتا ہے کہ کتنا کرپشن ہے۔ جاتے ہوئے یہ عثمان بزدار صاحب، آپ کو پتہ ہے ایک ایڈیشنل آئی جی تھا جو ان کو انہوں نے نوازا تھا، ایک V8 ساتھ لے گئے، ایک کرولا گاڑی ساتھ لے گئے، 5 دن سے پولیس والے کہنے اللہ دا واسطہ گاڑیاں واپس کر دو۔ عثمان بزدار سر معصوم سے وزیر اعلیٰ تھے وہ، تو یہاں پہ بنا کسی کو کچھ کہنے میں دیکھیں ان کو تو پروٹوکول بھی آخری دن چھوڑ گیا تھا۔ میں ایک تو میرے خیال میں عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کریں 100 دفعہ۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ پوری اپوزیشن نے پورا زور لگا لیا، عمران خان پہ کرپشن کا نہیں الزام نکل سکا۔ یہ اس کا کریڈٹ ہے۔ عمران خان خود آنیسٹ ہے، ایک جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ان کے دباؤ میں آ کے رکے بھی نہیں۔ اور میں بتاؤں حکومت سخت پریشان ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ باتیں کہیں گے جی نیوٹرل، بھائی میں تو پھر جانور ہوں، آپ مجھے کون ہوتے ہیں جانور کہنے والے؟ مجھے اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ سیاسی جلسے میں کھڑے ہو کے یہ کہنا، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ چور کون اور ڈاکو کون، غدار کون اور محب وطن کون؟ میرے محترم چیمہ صاحب بھی ہیں، دوسرے قابل احترام نون لیگ کے بھی ہیں، اب یہ کہتے ہیں فلاں ڈاکو، یہ کہتے ہیں فلاں ڈاکو، میں ان کے کہنے پہ ڈاکو کہنا شروع کر دوں؟ بھائی میرا فرض ہے پہلے حقائق جانوں، کیا ان کو کسی عدالتوں نے، کسی آئین قانون نے عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ سچ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اچھا عمران خان صاحب کو میں آپ سے 10 گنا جانتا ہوں، آج تک انہوں نے چنگچی رکشے پہ بیٹھے، اتوار بازار سے سامان لیا، کوئی بل جمع کرانے گئے، چپ رہے۔ اب کبھی وہ فرسٹ کلاس سے کم انہوں نے ٹریول کیا، کسی عام گھر میں کبھی رہے؟ جب آتے ہیں چارٹر پلین میں یا VIP فرسٹ کلاس میں، آگے 5 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، چلے عوام کو جاننے کے لیے نا۔ میں نے لاہور کا کوئی بیکورڈ ایریا نہیں دیکھا، ساندہ، جاتی عمرہ، کچی بادی، محمود بوٹی، رائے ونڈ، ہرون آباد، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، عمران خان کو بھیجنے والے پچھتا رہے ہیں، اب بس اتنا میں کہوں گا، کیونکہ میں اس سے پہلے کہ آگے جاتی کیونکہ وہ مراسلہ کے مندرجہ جات میں نے خود پڑھے ہیں، مجھے تکلیف ہے۔ آپ نے بھی پڑھ لی ہے مندرجات؟ ہاں، اس کے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ ان ایوری کنڈیشن عدم اعتماد ایک آئینی کام ہے، میں اس کے نہ خلاف تھا نہ ہوں، لیکن اس امریکہ کو جرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو،
अमेरिका साजिश के जरिए हमारे हुक्मरानों को चेंज करे, ये नाकाबिले कबूल। मैं वापस आती हूँ पछताने वालों की तरफ, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम से जा रही हैं तो करेगा मैं कौन? चौधरी जाफर साहब की तरफ अच्छा, जा रही हूँ। जाफर साहब, आप लोग इस वक्त सियासी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। आपको तो हुकूमत मिली है, चैलेंजेस आपके गुज़िश्ता हुकूमत से भी बड़े हैं क्योंकि कई जमातें इस हुकूमत में शामिल हैं। मसाइल वही हैं जो पिछली हुकूमत छोड़ गई, जिसके लिए आप नारे लगा रहे थे मार्च तक के इस हुकूमत ने क्या कुछ खराब कर दिया है। आप सड़कों पर आ रहे हैं, क्या वाकई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात हैं जी। इमरान खान साहब का ये कहना कि वो आईटीएल जिसके लिए मैं 26 साल मेहनत करता था, वो हमें बहुत सारी सूरतों में नजर आया। 3.5 साल में अपनी काबीना नहीं बना सकते। जितने काबीना के मेंबर हैं सब दिहाड़ियां लगा के, आरिफ हमीद भट्टी साहब का तजिया अपनी जगह, लेकिन वो सब दिहाड़ियां लगा के गए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाजत बतौर वजीरे तजारत और बतौर वजीर आजम काबीना के इजलास में इमरान खान साहब ने दी, और उसके एक्सपोर्ट करने के जो असरात हैं वो आज तक हम भुगत रहे हैं। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी इमरान खान साहब ने, और वो भी वजीर तजारत थे, तब भी वजीर आजम थे। इंडिया से अदवायात मंगानी थी, जफर मिर्जा साहब वजीर सेहत थे, और जिन अदवायात के लिए कहा गया था उनके अगेंस्ट वहाँ से मिनरल्स और क्या कुछ मंगाया गया, दिहाड़ियाँ लगाई गई। इमरान खान साहब ईमानदार हैं। उस्मान बुज़दार साहब को अपॉइंट करने वाले इमरान खान साहब ईमानदार हैं, और उनके घर के अंदर बैठ के सारे अमूर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के करवाने वाली, मैं तो नाम लेते हुए भी अजीब लगता है, फरा साहिबा, वो वहाँ बैठ के सब करती रही, लेकिन इमरान खान साहब ईमानदार हैं। फिर उससे आगे आप चलिए कि आपने वो काम करके दिखाए जिससे मुल्क का हर शोबा, आपने ऑफिसर्स कैसे लगाए, आपने आईजी इंतजामिया पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट की सेक्रेटरीज की फहरिस्त निकाली है कि आपने कहां कहां नहीं बदली और क्यों क्यों नहीं बदली। फिर आपने कोई एक शोबा ऐसा हो जिसमें अपने जाती दोस्तों को ला ला के ढो से मुल्कों को, और आपने उनको वो ओहदे नहीं दिए और उन्होंने वहां पे बैठ के माल नहीं बनाया। बनी गाला रेगुलराइज कराने की समरी इमरान खान साहब दरखास्त गुजार हैं, और इमरान खान साहब बतौर चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री उसकी अप्रूवल देते हैं। आप सीडीए का मास्टर प्लान चेंज करते हैं इस्लामाबाद का एक बनी गाला की खातिर, लेकिन आप करप्ट नहीं हैं, आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। आपके घर के अखराजात 40-50 लाख है महाना, वो कौन कौन अदा करता है, कैसे अदा करता है? क्या इमरान खान साहब को इल्म नहीं कि जहांगीर तरीन साहब जो उन्हें पैसे देते हैं, या उसके बाद चलाने वाले, या जिनको अभी वजीर आजम आजाद कश्मीर सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि स्पॉन्सर कम हो गए हैं, तो वो कहां से पैसे लेके आते हैं, वो कैसे इमरान खान साहब पर खर्च करते हैं? फिर आपने जो सवाल किया है कि जी इंतखाबात तो करीब नहीं, इंतखाबात करीब हैं, साल भर का फासला है इंतखाबात में, और कौन सी सियासी जमात है जो साल पहले इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएगी? हाँ, चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस से निपटेंगे। दो वजूहात की बुनियाद पर निपट सकेंगे। एक तो हमें काम करने का तरीका आता है, हमारे पास विजन है, हमारे पास टीम है, वो टीम है जिसने पहले काम करके दिखाया। आपने देखा, हमने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, हमने पीएसटीपी मुल्क का बढ़ाया, मुल्क के अंदर तजारत बढ़ी, लोगों का कारोबार बढ़ा, दहशत गर्दी का खात्मा मुल्क से किया। चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, ये तो आप कह रहे हैं बड़ा, पर जब हुकूमत आई थी आपके जाने के बाद उन्होंने कहा हमें बैंक करप्ट मुल्क मिला। सवाल, अभी आपने बहुत से मामला बताए 3.5 साल के, जिसके अंदर आपने अहम तैनातियों से लेकर अहम फैसलों का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से जो गलत मामला हुए उसको ठहराया। क्या आपकी हुकूमत कोई केस मिस हैंडलिंग करप्शन के मामला लेके करेगी, या टीवी शोज और जलसों में सिर्फ इल्जामात लगाएगी? जी 100% करेगी, क्यों ना करेगी। जितने भी ये मामलात मैंने उठाए हैं, जिन पे बात की है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे, हमें करना होगा, हम दोनों महाजों पे काम करेंगे, उन चीजों को सुलझाएंगे भी। हम वो ऑफिसर्स, आप अभी देखें अगले चंद दिनों में तैनातियां होंगी और किस तरह वो मेरिट के ऊपर होती हैं। हम खुद ये नहीं कहते कि हम कोई ऐब से पाक हैं या हमारे किए हुए फैसले
बिल्कुल मतलब वो उनके अंदर कोई झोंक नहीं हो ठीक सकती, है, देखते हैं सर कि आपकी तैनातियां कैसे मेरिट पर आती हैं, क्योंकि इस मुल्क में मेरिट की तलाश तो सबको है। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं। सर, कुछ बातें यहाँ पर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने की, इमरान खान साहब के खिताब से हमने आगाज किया, और ये अभी कुछ चौधरी जाफर साहब ने अहम फैसले गुज़िश्ता दौर के गंदम, चीनी, अद्वियात और कुछ तैनातियों का जिक्र किया है और उनकी मिस हैंडलिंग का। आपसे सवाल यह है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत में आने से पहले आप लोगों की एक बात थी, चोर जेल जब तक नहीं चले जाते हम इनका पीछा करेंगे, वो जेल से वापस हुकूमत में आ गए सर, आपका पीछा जारी है। इस वक्त इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है, क्या गेन कर पा रहे हैं चीजों को, मामलात को लेकर? चीमा साहब को आवाज नहीं जा रही है। भट्टी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी जब तक वो हमारे साथ शामिल हो। सर, अभी कुछ बातें चौधरी जाफर साहब ने रखी और एक आपने बात की है गुज़िश्ता के आखिर में हैंडलर्स के पछताने की। इमरान खान साहब ने, वो पछता रहे, खैर इमरान खान साहब ने आज बोला है 3 बार अपने खिताब में हैंडलर्स को लेकर उसका जिक्र किया है और बड़ी चैलेंजिंग टोन थी उनकी। अच्छा, क्या पैगाम दे? मैं आयशा, एक तो दोनों काबिल एहतराम सियासी जमातों के लीडर हैं, आपने मुझे बिठा लिया और वैसे भी हमें तो जानवर कर दिया न्यूट्रल करके अगलों ने। मुझे ये बताएं कि यही जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, क्या कहते थे अदम एतमाद कब कामयाब होती है? जब एस्टेब्लिशमेंट का साथ हो। एक शॉट दिखा दे जिसमें इन्होंने ना कहा हो, बिल्कुल ऐसा है, एक शॉट दिखा दें आज से 3 महीने पहले। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान, मौलाना मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब कहते थे ये धांधली है, एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली कराई है, 2018 का इलेक्शन फ्रॉड है, खलाई मखलूक ने कराया है, 2 अहम तरीन शख्सियात के रिजाइन मांग रहे थे। अगर ये मान लिया इनके कहने पे मैं नहीं कह रहा, 18 का इलेक्शन टोटल फ्रॉड था, खलाई मखलूक ने कराया था, जो बंदा वो आर्मी चीफ का रिजाइन मांग ले, DGIS का मांग ले, उस हुकूमत का जब आप वज़ीर आज़म बन जाए वो जायज़ कैसे हो गई? अरकान असम्बली तो सारा ही वो है। फिर मैं बात निकलेगी ना, दोनों लीडर काबिल एहतराम है, माइंड कर जाएंगे। ये डीलें होती हैं, डीलें मुका, तो डीलें तो सब कर रहे हैं ऑफ कोर्स, इसमें दो राय है ही कौन नहीं। मैं ना मोहतरम, मेरे लिए काबिल एहतराम जाफर साहब भी हैं और इकबाल चीमा साहब भी हैं। और यार मैं कह रहा हूँ ना, इन्हीं के लीडरों के सारे बयान निकाल लें एक एक। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ धरती का नसूर है, वो आसफ अली जरदारी ने कहा था, इसका साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसे शहबाज साहब ने फरमाया था इसके गले में पटा इंसानों के नहीं गले में डालता, घसीटेंगे। क्या वजह है ये अचानक एक हो गए? क्या कौन सी कोई वजूहात बताए ना। 1 पॉइंट बस। हाँ, इमरान खान नहायत एहतराम से, जाफर साहब मैं इमरान खान साहब की हुकूमत की गारंटी नहीं दे रहा कि वो ईमानदार हैं। अगर वो वाकई करप्ट हैं तो हम ये कहेंगे आप उनके खिलाफ जो आपने निशानदेही किया केस कर लें, हम उसके मुताबिक राय देंगे। हमारा किसी सियासी जमात से जो साफ़ी उसको छितर मारने चाहिए जो किसी एक सियासी जमात का पैरोकार बन जाए या उसके कसीदे पड़े, ये मेरी राय है। बाकी हर एक इंडिपेंडेंट किसी को भी पसंद नहीं, जो जिसके साथ खड़ा है बस वही पसंद है, अदरवाइज कोई पसंद नहीं। वो भाई ये कह रहे हैं ना इन्होंने सारा कुछ गंदम किया तो करे, बिस्मिल्लाह शुरू। हम केस करेंगे और देखेंगे कि अभी की हुकूमत केस 1 महीना हो गया आपको फरा मिली, लेकिन मिली ठीक। उनकी तो कभी पंजाब में तो कभी ना नहीं बन पा रही है, बाकी बातें तो दूर की बात है, क्या 1 महीना।